ہے محکمات، اچھا آیات محکمات جی اور آیات متشابہات. جی یہ قرآن مجید کی اصولی، جی یہ تفسیر نہیں، اصول تفسیر کی بات ہے. اچھا یہ مولوی جو پیدا ہو رہے ہیں جی ان کے باؤنسر سے اوپر سے گزر جائے گا. اصول تفسیر الگ ہے، جی تفسیر الگ ہے، اصول تفسیر الگ ہے. جی ترجمہ مطلب ترجمہ قرآن الگ ہے جی اور اصول تفسیر قرآن الگ ہے. ترجمہ قرآن پاک الگ ہے، تفسیر قرآن پاک الگ ہے. جی پھر اس کے اندر معارف قرآن الگ ہے جی جس کو تدبر اور تفکر فی القرآن سے سمجھا جاتا ہے. جی جی تو وہ اس کی مثال ایسی ہے جان، جیسے کوئی پانی کی سطح پر تیرے تو اس کو گہرائی کا اندازہ تو نہیں نہ لگے گا نہیں اندر کیا لگے گا. ہے. جی جی بات صحیح. اور جو سمندر کی یا دریا کی تہ میں پہنچے گا تو ہیرے موتی جواہرات تو وہاں رکھے ہوئے ہیں، پانی جی کی جی سطح پر تو ہے نہیں. تو جی مولا کے کلام کی شان یہی ہے کہ اس کے ہیرے جواہرات اگر تلاش کرنا ہے تو معارف کہتے ہیں اس کو. جی اب وہ تدبر سے ملتا ہے، ترجمہ سے نہیں سمجھ میں آتا، بلکہ ترجمہ قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. ہاں 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 نہیں صحیح. سمجھ آتی ہے نا جی اس کو. جی بالکل سمجھ نہیں تو آئے گا. تو اصول تفسیر کی روشنی میں جی جو آپ نے سورہ آل عمران کی، وہ پورے قرآن حکیم میں بڑی زبردست وہ آیت کریمہ ہے. جی مالک کائنات اصول تفسیر قرآن بیان فرما رہے ہیں وہاں جی پر. جی کیا جی اصول بیان فرما رہے ہیں؟ مومن کو ٹو دا پوائنٹ، بالکل مختصر میں شارٹ وے میں جی ذکر جی کر رہا ہوں. ہاں جی قرآن مجید کے بارے میں رب تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں ایمان والے بندوں سے جی کہ میں نے دو طرح کی، دو کوالٹی کی، دو قسم کی آیات کریمہ اپنے کلام پاک میں نازل کیا ہے. جی تو میرے بندو اچھی طرح سمجھ لو، جی ایک کوالٹی ہے جس کا نام رکھا ہے رب تعالیٰ نے آیات محکمات، جی اور جی دوسری کوالٹی ہے اس کا نام رکھا ہے آیات متشابہات. جی آیات محکمات کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے بھائی جان کہ جی ایسی آیات قرآنی جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں سے جی ان احکام کا ذکر فرماتے ہیں ان آیات کے ذریعے جی جس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو. اچھا اچھا مثلا جی اس کی ایک مثال لیا جائے، اگزامپل، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جی نماز قائم کرو، زکات دو، مال کا زکات دو. اب جی اس میں کیا مطلب، اس میں کوئی کنفیوژن تو ہے نہیں، نماز قائم کرو. اب جی آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرما دیا نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. مولا کو اصول بیان کرنا تھا، بیان کر دیا. جی لیکن اب وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کرو؟ وہ مفسر قرآن اعظم، مفسر جی اعظم قرآن حکیم کے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ نماز کیسے قائم کی. تو بتا دیا آقا نے جی کہ 5 وقت کی نماز ہے. ہاں، فجر جی میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4. کیسے تمہیں ادا کرنی ہے؟ تقیم الصلاۃ کہیں پورے قرآن حکیم میں تو نہیں لکھا ہوا ہے. جی مولا نے یہ تو نہیں نازل کیا کہ فجر میں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، قرآن میں نہیں کہیں نہیں ہے. نہیں نہیں جی صرف اصول بیان کر دیا، یعنی حکم کو نازل فرما دیا. جی تو یہ کھلم کھلا حکم ہے نا، جیسے نماز قائم کرو. جی قولوا للناس، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، جی معاملہ صحیح کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے رب کے غضب سے ڈرتے رہو، بچتے رہو. بالکل صحیح. یعنی ایسی آیات قرآنی جس سے حکم الہی کا کلیئر کٹ، جی بالکل واضح طور پر پتہ چل جائے، مومن کو پڑھتے ہی پتہ چل جائے. جی جی اور وہ ایسی آیات قرآنی جس سے احکام الہی کلیئر سمجھ میں آ جائے جی اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو. جی جی اور اس سے حکم، یعنی جس پر عمل کر کے مومن اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتا ہے. جی تو آیات محکمات کا مطلب ہوا جن آیات سے احکام الہی کی جانکاری ہو، وہ جی آیات محکمات ہوئیں. جی 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 اور آیات، وہ دوسری کوالٹی جس کا نام رکھا رب تعالیٰ نے آیات متشابہات، جی وہ کیا ہے؟ اس سے احکام صادر نہیں ہوتے، یعنی احکام بتانا مقصود نہیں ہے، جی
अन्ना अहकाम को वाजे करना है और अच्छा उसमें अहकाम होते ही नहीं। अच्छा हाँ, ये समझ लें भाईजान, जी आयात मुतशाबिहात में अहकाम नहीं होते। जी जी अभी मैं जब मिसाल दूंगा न तो बात समझ में क्लियर हो जाएगी। जी उससे हुक्म नहीं सादिर होता, हुक्म का इजहार नहीं होता। जी अन्ना हुक्म का इजहार होगा भी क्यों? अल्लाह ताला ने आयात मुतशाबिहात को अहकाम के लिए नाजिल ही नहीं किया, जी जी बल्कि सिर्फ जैसे मिन वन ए टू जेड रब ने जो कुछ फरमाया जी बिन सोचे समझे उस पर ईमान लाना है। अच्छा हाँ, हाँ बिन सोचे समझे आमन न उसमें सद्दक न करना है। उसमें कयास और गुमान का नहीं कोई कयास गुंजाइश छोड़े, नहीं। गोली मारे, कयास को गोली मारे, हाँ पहले तो उसकी तफसीर ही नहीं हो सकती, नामुमकिन, मुहाल, मुहाल। हम्म आयात मुतशाबिहात, लफ्ज मुतशाबिहात देख रहे हैं भाईजान, जी मुतशाबिहात का मतलब ही हुआ एक तरह की बातें। ये मुतशाबिहात का उर्दू तर्जमा हुआ। जी आयात को रहने दें। अच्छा अच्छा मुतशाबिहात का मतलब ही होता है मिलती जुलती बातें, हम्म ऐसी बातें जिसकी तफसीर बयान करना नामुमकिन हो। अच्छा हाँ, अब हम्म उसकी मिसाल मैं देता हूं तो देखिए आप फिर ठाका मार के हंसेंगे आप कि माने वो क्या क्या चीज है, क्यों मीनवान उस पर ईमान लाना है, उसकी न तफसीर बयान की जा सकती है, न उसका तर्जमा किया जा सकता है, न उसके बारे में कुछ सोचने की इजाजत है, न उसके बारे में कोई तफक्कुर करना है, न कोई तदब्बुर करना है। मौला कहते हैं, फरमाते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं चुपचाप आमन्ना सद्दकना कर दो, और फिर अगर कोई उसमें किसी तरह की कयास आराई या किसी तरह की दखल अंदाजी, मतलब वो उसके बारे में तफक्कुर करना जी शुरू कर जी दे, जी तो फिर मालिक कायनात ऐसे बदबख्त बंदों की मजम्मत बयान की है अगली आयत में, उसी आयत के मन आगे चल करके अच्छा जी कि जो आयात मुतशाबिहात में गौर व फिक्र या तदब्बुर या किसी तरह की कयास आराई करने की कोशिश करते हैं, जी वो मेरे बदबख्त बंदे हैं और वो बदतमीज ही नहीं सरकश हैं वो। बहुत खूब इसका बहुत मतलब है खूब उसके दिल में ज़ैग है, उसको हाँ कुरान मजीद की हाँ जुबान में हाँ ज़ैगुन फयत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितनति व जी इब्तिगा तावीली वमा हाँ यालमु तावीलहु इल्लल्लाह। ये शान बयान किया रब्बी ताला ने आयात मुतशाबिहात की, कि आयात मुतशाबिहात वो है जिसकी मुराद सिर्फ मैं जानता हूँ, और मैंने तुम्हें बहुत खूब बताने की जहमत इसलिए नहीं किया कि तुम्हारी समझ से बाहर है वो सिर्फ उसकी उसकी तफसीर, उसकी तावील मैं जानता हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं जानता, और मुझे बताना भी नहीं है, इसलिए कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत जो थी वो मैंने दे दिया, वो आयात मुहकमात हैं, तुम अहकाम निकालते जाओ, बहुत अहकाम बहुत निकालते जाओ। अहकाम का मतलब कि हुक्म इलाही पर तुम्हें अमल करना है ना, तो तुम हुक्म, जिन आयात से हुक्म इलाही का पता चलता है, उसका इजहार होता है, तुमको अमल करने के लिए मैंने पैदा किया है, तो तुम अमल करो। और जी ये ईमान का मामला है। आयात मुतशाबिहात क्या है? सिर्फ इस पर ईमान लाना है, उसकी तफसीर नहीं चाहिए। और बहुत खूब खुद बहुत खूब क्लियर कट बता दिया कि उसकी तफसीर, उसकी तहकीक, उसकी मुराद और वो क्या है, वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने सिर्फ अपनी अजमत, अपनी किबरियाई बयान करने के लिए उनको नाजिल किया है। अब तुम्हारा काम क्या है? फकत उस पर जैसे वो नाजिल किया गया है, तुम जी मिन वन ए टू जेड, बिन बिन चूं चरा के तुम उस पर ईमान लाओ। जी उसके उसकी उसके अंदर में घुसने की कोशिश मत करो, तुम घुस ही नहीं सकते, सीधी बात है। अब ले मिसाल, एक एग्जांपल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा, जी अलिफ लाम मीम। लो, ये हो गई आयत मुतशाबिहा। जी 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 अब ये अलिफ लाम मीम, इसकी हाँ मुराद क्या है? हाँ ये हुरूफ मुक़त्ताअत है ना, जी 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 ये मुतशाबिहात है। जी 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 अब कोई कहे कि अलिफ से क्या मुराद है, लाम से हाँ क्या मुराद है, मीम हाँ से क्या मुराद है, तो ये वो बंदे करेंगे जी जो बदबख्त होंगे, सरकश जी होंगे, बहुत और खूब जिनके दिल में टेढ़ापन है, ये तो जो ऑपरेशन कुरान कर दिया मजीद एकदम में फितना तलाश करते हैं, है ना, फितना यानी उससे फितना वो फैलाएगा। जी जी हाँ, इसलिए मालिक कायनात ने खुद फरमाया कि ये आयात मुतशाबिहात में कौन करते हैं? जिनके दिल में
फी कटी कुलूबिहिम होती है। ज़ैगुन, जिनके दिल में टेढ़ापन है, जी जी उनका दिल साफ नहीं, अपने रब से रिलेशन अच्छा नहीं है उसका, वो बहुत मुनाफिक है, खूब। जी 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 वो मुनाफिक भी है, मुशरिक भी है। चूंकि चलिए। रब ने जब मना फरमा दिया कि मेरी जी आयात मुतशाबिहात में मैंने इसलिए नहीं नाजिल किया है, पहली बात तो कि नाजिल इसलिए नहीं किया कि तुम उसमें गौर करो, अब मैं मना भी कर रहा हूँ कि तुम उसमें गौर व फिक्र मत करना, तुमको जी सिर्फ जी ईमान लाना है, जी ईमान लाना है। इस आगे चल के उनकी तारीफ बयान किया, किन की, जो सच्चे ईमान वाले हैं वो क्या कहते हैं, उसको मालिक कायनात खुद बयान फरमा रहे हैं कि मेरे जो ईमान वाले बंदे हैं वो क्या कहते हैं कि ये तो मेरे रब की तरफ से है, कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, या आयात मुहकमात हो या मुतशाबिहात, ये मेरे रब की जानिब से है, जैसे मौला ने नाजिल किया वैसे हम ईमान लाए उसके ऊपर, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी तफसीर, जब मेरे रब ने नहीं बयान किया, मेरे रसूल पाक ने नहीं बयान किया, तो हमें क्या जरूरत पड़ी क़ियास आराई करने की। और रब के कलाम में क़ियास करना ये जुर्म अजीम है, हाँ इससे बड़ा बिल्कुल। कोई शिरक भी नहीं है, जी इससे बड़ा कोई निफाक भी नहीं है। और जिनके दिल में टेढ़ापन होता है, जो रब के कलाम पाक में फितना को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो इस तरह की फितने वाली बात करते हैं। सही। फितना से मुराद आजमाइश, यानी लोगों के दरमियान फ्रैक्शन पैदा करना, लोगों में तरह तरह की अफवाह उड़वाने का, यानी रब के कलाम पाक जब मालिक खुद फरमाते वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा उसकी तावील यानी उसकी तहकीक, उसकी तफसीर, उसका उसूल जो मैंने आयात मुतशाबिहात नाजिल किया है, उसकी तफसीर मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। जी जी अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात। अब उसके बाद भी बंदा माने सरकशी करे कि जब कह रहे मौला के मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और तुमको मैं जनवाना, तुमको कोई जिम्मेदारी भी नहीं दिया जी कि तुम उसको जानने की कोशिश करो, हाँ हाँ बिल्कुल बल्कि मना फरमा रहे हैं कि उसमें तुमको गौर फिक्र नहीं करना, नहीं करना है। मैंने नाजिल किया अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा। अब तुमको ये नहीं सोचना है कि अलिफ लाम रा में क्या क्या रखा हुआ, क्या क्या मुराद है रखा है? उसकी, जी नहीं, तुमको ईमान लाना है बस, ये मेरे रब की आयत है, जी जी ईमान लाना, अलिफ लाम मीम, काफ, ताहा, यासीन, नून, वल कलम। क्या है नून? नहीं, हम हमें उसमें नहीं पढ़ना है जी, ये आयत मुतशाबिहात हैं। बहुत खूब बहुत खूब। जी जी अब मसलन एक और खूबसूरत सी मिसाल, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, मौला सूरह फतह पारा नंबर 26 में फरमाते हैं, अच्छा अल्लाह ताला का हाथ उनके हाथ पर था। लो, अब कोई बंदा कहे अल्लाह ताला का भी हाथ होता है, कैसा हाथ होता है, जरा दे हम इसमें तहकीक करें, तो ये यही उसके गड़बड़ दिल है। के टेढ़ापन की। जी हाँ, जी मौला जी ने एक जगह फरमाया अपनी शान में, यदुल्लाहि या क्या नाम है, वो यहूदी मरदूद मलून कौम ने कहा था यदुल्लाहि मगलूला, अल्लाह ताला के हाथ तो बंधे हुए हैं, नऊज बिल्ला। तो मौला ने उसके जवाब में उन पर पहले लानत भेजी, उसके बाद फरमाया बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। रे बदतमीज, ऐ सरकशो, मलूनो, मेरी शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो, मेरा हाथ बना हुआ है? नहीं, मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं। अब कोई बंदा कहे अल्लाह ताला के भी दो हाथ होते हैं क्या? लो, तो ये कुरान कहना चाहता है कि जैसे मौला ने फरमाया तुम उसकी तफसीर में मत जाना, जी मौला ने फरमाया कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, हाथ से क्या मुराद है वो रब जाने, हमारा हाँ ईमान है बस। बिल्कुल सही है। अब वो हाथ से मुराद अगर वो उसके उसमें जाएगा, क़ियास आराई करेगा तो गुमराह होगा, जी जी गुमराह होगा, मुशरिक बनेगा, मुनाफिक बनेगा। हम्म। जी चलिए बहुत बड़ी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात समझ में आई।